बेकदरा ना रोना, एक दिन ऐसा आएगा जाना मालक देखो ना। कल्या की सी लैनो की आए को पल पल दे हिसाब नूं लैना मालक तोला। दान पुण्य ते सिमरन किन्ना कीता कहना बोला। दास खजाना सिमरन बाजों तेरा की है मोला। बाणी श्री श्री 108 स्वामी खजानदास गिरी जी महाराज, शब्द गुरगद्दी, पलौड़ा साहिब, जम्मू। बगैर देखी अग विच जल रहा संसार, अगन बजाउंदे संत जन बख्श नाम करतार। बगैर देखी अग विच जल रहा संसार, अगन बजाउंदे संत जन बख्श नाम करतार। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी हो, आप भागे जी हो जिन्होंने अज रूहानी सत्संग विच बैठन का मौका मिले। ये मौका परमात्मा की बख्शिश कृपा होवे तां घड़ी सत्संग की हथ आती है। हर ऐतवार ही गुरु महाराज की इस घड़ी को संगतां जिहड़ियां आनंद लैंदियां ने, जिस विच काफ़ी जो साढ़े सतगुरु रहबर स्वामी खजानगिर महाराज जी जो अपनी पावन बाणी के विच बहुत कुछ साढ़े लिए छुपा के रखा। जो भी बाणी को सुन के अपने आप की खोज करनी शुरू कर देता है, उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल हो जाता। उन्होंने दुनिया की ये जो सानू दात मिली हुई है मानस दे इस दुनिया में विचरन वास्ते, ये दे पा करके असी कितने खुश हाँ या कितने असी दुखी हाँ। ये दुख सुख आंदा कितों है और असी कई बार महसूस करते हैं कि कुछ चीज़ लभदी है नहीं है, पर फिर भी दुख बड़ा है। दुख का रूप पीड़ा जी है साढ़े भीतर मन की, जो सानू एक तकलीफ दिंदी है। असीं अपने आप को बहुत दुखी समझते हाँ, पर इत्थे किते ना किते साड़ी अपनी कोई कोशिश है जिहड़ी नाकाम है। वो नाकामी जिहड़ी है उसनूं असीं दूर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि असीं हार जाने
ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਗੈਰ ਦੇਖੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਕਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਵਸੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਭੀਤਰ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦੇਖੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ
तो उम्मीद कर्म होर बना देगी। इस करके उम्मीद नहीं रखनी है, अपना फर्ज पछाण के सेवा करनी है, फर्ज पछाण के आप कर्म कमाने। और जो संबंध सतगुरु ने साढ़े स्थापित किए हैं, ये साढ़े पिछले जन्मों के संबंध हैं, प्रारब्ध कर्म हैं जो साढ़े एक दूसरे नाल बने हुए हैं। अज मौका मिले मानस दे विच आ करके सानू इन्हां कर्मां तो मुक्ति पाने वास्ते, लेकिन असीं अपनी बुद्धि अनुसार एक ऐसे जाल में फस जाने हैं जिन्हों असीं मोह का जाल कहने हैं। और मोह का जाल भरम का जाल है। साडा संस्कार देना बच्चों को ठीक है, फर्ज बनता है, देना है, लेकिन कुसंगत में जाते उसको रोकना भी है, ये भी साडा संस्कार है। मास्टर अगर बच्चे को डांटेगा नहीं, वो पढ़ाई नहीं करेगा। इस करके जितों तक भी हो सके बह के समझाना, कदे प्यार नाल समझाना है, कदे ये समझाना भी अपने मन की सोच है। इसी तरह से अपने मन को भी समझाना है, क्योंकि मन सोचा पैदा करता है। मन चाहता है कि मेरे हुक्म च रहे, मन चाहता है कि मेरी आज्ञा विच रहे, मन चाहता है कि जो मैं करा वो मने। ये मन का कर्म जिहड़ा है एक दिन ऐसा जाल बनेगा, ऐसा जाल बड़ा बनेगा जिसमें असीं कोई फसा नहीं। इस जाल को कट्टण वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं कि इस अगन दे विचों संत बचाउंदे ने। किस तरह? नाम की कमाई, साडे ते नाम की कृपा करते हैं, साडे ते बख्शिश करते हैं, साडे भीतर जो परमात्मा का नाम बसिया होया है उस नाम की जानकारी दिंदे ने। और जिसनों नाम करनी सोझी होगी, नाम की कमाई की सोझी होगी, जिसमें प्रपक्ष पता लग गया कि ये नाम ही मैनू मेरे कर्मां तो मैनू मुक्त कर सकता है, ये नाम ही मैनू अगों कर्मां तो बचा सकता है, ये नाम ही मेरे अंदर वो दुख सुख तो मैनू उठा सकता है, ये नाम ही मैनू एक शीतलता बख्श सकता है, एक सकून बख्श सकता है। जिस रूह इस गल की समझ आ गई प्यारे गुरमुख लोग, संतों तुहाडे संतां की कृपा हो, क्योंकि नाम की कृपा संतों तो बिना नहीं होती है। ये संत का नहीं हैं जो सानू आकर के सानू कर्मां की अग तो बचाते हैं, माफ कर लीजिए। इस करके प्यारे गुरमुख आओ, अज मन में एक फैसला करना है कि जिथे असीं दुनिया के मोह जाल में फसे हुए हैं, धीआं पुत्रों के जाल में फसे हुए हैं, इन्हां नूं समझना है कि ये कर्मां की खेड है। ये कर्मां की खेड तो मैं बचना है, और ये बचाएगा मैनू नाम। नाम ही धरवासा देगा तुहानूं, नाम ही तुहानूं समझाएगा कि तुहाडा बिना नाम तो दुनिया ते होर है ही कोई नहीं। जिस तरह महाभारत दे विच अर्जुन युद्ध नहीं सी करता, कहता मेरे सारे अपने हैं, मैं किहनूं मारा, मैं किहदे नाल युद्ध करा, सारे तो मेरे अपने हैं। लेकिन किसी ने समझाया कि ये सारे शरीर है, आत्मा जी वो अमर है, तो शरीरों का नाश करना है। इस करके प्यारे गुरमुख को जदों उसने अपना ज्ञान बख्शिश किया तो इन्हों समझ आई कि कर्म भोगी में कर्म भोगन वास्ते आई हैं रूहां, इस वास्ते इन्होंने मुक्त करना बहुत जरूरी है। इस करके प्यारे गुरमुख को पहला आप मुक्त होवांगे तो फिर दूजे को मुक्त कराना। पहला आप कर्मा तो से मुक्त हो गए, फिर किसी को कह सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है। एक सारी की सारी सोची केवल सानू नाम तो मिलनी है, तो नाम तो साडा मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इस करके साध संगत कि नाम एक अटल सच्चाई है परमात्मा की, जो केवल परमात्मा तुहानू तुहाडे मुकाम ते जिथों ये रूहां आईयां होईयां ने वापस उस स्थान ते ये नाम तुहानू पहुँचाना चाहता है, वापस तुहानू उस जगह ते ले जाना चाहता है। तुहाडा अपना देश, तुहाडा अपना घर, जिथे तुसीं सदा जा करके आबाद होना है, उस आबाद स्थान पर जाकर अदर अमर हो जाना है। ये नाम चाहता है, ये परमात्मा के प्यारे चाहते हैं। लेकिन आसी साडा इतना जाल वधिया होया, इतना
ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। जाना है, वापस जाना है, इस कर्म भूमि तो मुक्त होकर जाना है। परमात्मा के नाम के प्यारिਆਂ की कमाई जो सानू अजर अमर करती है, उन्हों की आग्ञा को पालना करना है, उसकी आग्ञा की पालना करनी है, उन्होंने वचनों को असीं मनना है, उन्होंने वचनों से असीं चल करके असीं अपने उस स्थान पर जाना है। आग लगी आकाश को झड़ झड़ बहना गया, संत ना होंदे जगत में जल मरता संसार। ये परमात्मा के भेजे हुए संत महात्मा गुरु पीर अवतार जितने भी संसार में आए ने सानू बचाने वास्ते आए ने, सानू कर्मां दी अग तो बचाने वास्ते आए ने, पर साडा उन्हां ते विश्वास नहीं है, साडा उन्हां नाल प्यार नहीं है, साडा उन्हां नाल राबता उन्हां नाल कदे पैंदे नहीं सी। असीं सोचना है की करना इन्हां कोल बह के, लेकिन नहीं, उन्हां दी संगत प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। पहला भी दस्सिया ही कि संगत तुहाडी जिस तरह की होएगी तुहाडा उस तरह का तुहाडा सुभाव बन जाएगा। जिस तरह हवा जी है वो बर्फ तो उपर होके आती है तो ठंड लैके आती है, अग तो उपर होके आएगी तो गर्मी लैके आएगी, फुलों तो उपर होके आएगी तो खुशबू लैके आएगी, अगर विष्टा तो होके आएगी तो बदबू लैके आएगी। हवा का कोई कसूर नहीं है, कसूर है उन्होंने राह में जिस तरह की संगत मिलती गई वह सुभाव हवा का उतरन का हो गया। असीं भी हुण अपने वाल झांती मारनी है कि साडा सुभाव किस होर जा रहा है, साडा सुभाव किस तरह का है, कि साडा सुभाव अच्छा है या बुरा है, या किसी को नेक मत दे रहा या नेक मत लै रहा है, या किसी का भला सोचण रहा या नहीं सोचण रहा। असीं दूसरिਆਂ की सोचां देख के असीं कहने कि फलाने की सोच किस तरह है, ढिंगरी सोच की, वो फलाना बंदा किस तरह है, कभी अपनी सोच वाल झांती नहीं मारी। जो असीं अपनी सोच वाल झांती मारांगे प्यारे गुरमुख को सानूं कई त्रुटियां मिलणगियां, और जिन्होंने त्रुटियां मिलणगियां महसूस होणगियां, अगर वो उन्होंने दूर करने की कोशिश करेगा तो शायद वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है, अपने उस मुकाम को हासिल कर सकता है जिस मुकाम को पाने वास्ते उसने ये धारणा की हुई है। ये मनुष्य जन्म लिया हुआ है, इस करके इस मनुष्य जन्म का जो भाव है, जो कीमत है, ये अज असीं जी रहे हैं, सानू इसका नहीं, असीं आनंद विच हाँ, मौज विच हाँ। ये आनंद मौज जो असीं जिसनूं कहने हैं, ये आनंद मौज नहीं है, ये दुखों के धंधे हैं, ये दुखों के कर्म हैं जो तुहानूं कर्मां दी कुंडी च फसा रहे हैं। क्योंकि सुख विच कर्म कोई अच्छा नहीं होता यार, सुख विच होए तो असीं हौमे हंकारां दे विच आ सकते हैं, क्रोध विच आ सकते हैं, मान वडेग विच आ करके असीं कई ऐसे कर्म कमा लैंदे हां। ये सारे दे सारे हैं उस आगे विच चलन दे समान, जो अज मेरे सतगुरु स्वामी खजानवी सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं, बगैर देखे आगे विच चल रहा संसार, और इस विचों केवल दी केवल जो साडे संत जन हैं वो नाम की कमाई के जरिए सानू इस आग विचों बचाते हैं। अगे सतगुरु महाराज जी बड़ा सोहना फरमाते हैं। हाँ जी, हंग 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 सोहे समझ ताहे बेड़ा पार, चोला वखो वखरा है एक रूप नर नार। हंग 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 सोहे समझ ताहे बेड़ा पार, चोला वखो वखरा है एक रूप नर नार। अंग 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 सो समझ ता है बेड़ा पार। अंग की है ये दुनिया है, और ये जीव दुनिया में रह ले, इस दुनिया में रह करके इस जीव ने सो की पहचान करनी है। अगर इस दुनिया में रह करके परमात्मा हर कण कण में मौजूद है, हर जगह ही उसका जालो जलाल है, हर कोने विच उसका आवास है, हर कोने विच हर नूर विच उसका नूर है। महसूस करो तो लागे है, ना करो तो दूर है। ये जो दुनिया है ये भी परमात्मा की रची हुई है, बगैर परमात्मा तो नहीं है। ये इन्हों परमात्मा ने पैदा किया है।
इसे करके अरदास में कहते हैं परमात्मा जी अपने मखलूकात अपनी संगत की सेवा बख्श। सारी संगत की सेवा नहीं करनी, मखलूकात होती है दुनिया हंग जो नाश हो जानी है, खत्म हो जानी है। ये हंग जो दुनिया है, जितनी भी दुनिया है, चाहे किसी भी धर्म, किसी मुल्क, किसी जात, किसी मजहब में आई है, लेकिन जो शब्द का व्यासी है, जो गुरु का प्यारा है, जो सोल जानने वाला है, वो हर नूर में अपने मालिक का नूर वेखता है। ये जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, जिसनों हवा, अग, आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जिस दे नाल ये शरीर बनया होया है, ये सारा का सारा ढांचा जो शरीर का बनया होया है केवल परमात्मा को मिलन वास्ते मिले, और परमात्मा का वास इस शरीर विच है। अगर इंसान ने परमात्मा को देखना है तो वो इस शरीर विच अपनी झाती मार के इस सतगुरु की कृपा, गुरु जी की कृपा अनुसार अगर वो चलता है, गुरु की आज्ञा नाल चलता है, तो अपने भीतरों ही परमात्मा के दर्शन कर सकता है। इस करके महाराज जी कहते हैं ये शरीर कितने रह रहा है, हंग विच रह रहा है, दुनिया में रह रहा है। ये दुनिया के विच परमात्मा है, क्योंकि जब परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो कोई परमात्मा अलग थोड़ा इस दुनिया को। जिस तरह साढ़े इस हिंदुस्तान के विच देवी देवतियों का बहुत प्रचार प्रसार है, बहुत दुनिया मानती है, 33 करोड़ देवी देवते ने, हर कोई किसी न किसी को मानता है, अपनी मनोकामना पूर्ण करता है, कड़िया शरधा भावों के नाल, कड़िया दुख तकलीफों के नाल, जिस तरह भी कोई दसदा है उसनों पाने की कोशिश करते हैं। देखिया है इधर जो माता वैष्णो दे जाते हैं, कई लोग पैदल यात्रा जाते हैं, कई लम्बे पै के लेट के आए जाते हैं, कोई मील मिलते जाते हैं, किसी न किसी तरह कितनी तकलीफ करके तो पहुँचते उत्थे। किस वास्ते? वो अपने वास्ते थोड़ा है, कोई चीज़ की प्राप्ति वास्ते है, जो दुनिया की कोई वस्तु है जो ये को नहीं है, उसकी प्राप्ति करने वास्ते कुछ ना कुछ करता है। कई असी व्रत नमाज़ा करते हैं, व्रत रखते हैं, की दिन के किन्ने किन्ने चिर असीं भुखे रहने, किहदे वास्ते? अपने वास्ते नहीं, दुनिया वास्ते। अपने वास्ते नहीं करता है। तो जो असी मनते हाँ, कोई ना कोई असी चाह रखते हाँ, मन में चाह रखते हाँ कि मैंने परमात्मा जी गल देखते, जो किसी को पुछते तो फिर वो सानू दसदे जी इतना करो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। असीं उस तरह कर दो, भावें कितनी डिफिकल्टी, कितनी दुखदाई क्यों ना होएगा, लेकिन असीं उस वस्तु पिछे करने की कोशिश करते हैं। और असीं देखते हैं जो असीं जम्मू वाले पासे जाते हैं जां इधर पहाड़ों वाल जाते हैं तो काफ़ी सारे सानू जी मनुष्य जिहड़े आ सानू मिलते हैं, बहुत बहुत तकलीफां उठ के उस दर तक पहुँचते हैं। किहदे वास्ते? दुनिया की वस्तु, दुनिया की चीज़ वास्ते, जो आखिर में छड़ जाए, हासिल हो भी जाएगी, आखिर वो छड्डनी पैनी है। इस गल में श्री गुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो ये तकिया माड़ा तो कोई भी नहीं है, अगर देवी देवते हैं तो वह भी परमात्मा के हुक्म में है, वो भी परमात्मा की उचाई खेल है। ये बड़ा लंबा चौड़ा साल है। इतने आके भी साड़ी सोच ने काम करना है, साड़ी सोच किस तरह की दुनिया में रह करके किस तरह की बनी है, दुनिया दी चाहतां में रुझी हुई है कि जां परमात्मा के प्यार में रुझी हुई है, ये साड़ी सोच नहीं करना है। महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस मतलब बड़ा सुंदर शब्द उच्चारिया है। महाराज ने कहा कि कितने देवी देवते, कितने काल करार, क्या भलिया मनुखा मनिया कि तेरिया सोचा ने बहुत भारी जन्म लिया होया है, वस्तुओं की चाहत में तू फिर वक्-वक् हिसाब नाल अपना जीवन बसर करता है। तो प्यारा तेरा जीवन जिहड़ा है वो तेन किस वास्ते मिले, इस मुद्दे तो तू भटक बैठा है, इत्थों तू उलझ बैठा है, इत्थों तेन याद ही नहीं रहा कि ये मनुष्य जन्म तेन मिले कदे वास्ते है। जो ये इंसान इस मुद्दे तो भटक जाता प्यारे गुरमुखो,
फिर उसका जीवन जिहड़ा है वो जीवन नहीं रहता। जीवन च बहार आती है, जीवन च अगर खुशबू आती है, जीवन च अगर महक आती है तो वो केवल गुरु लिया है। प्यारे गुरमुख, जो गुरु की याद में कहते ने आंसू गिरदा ना, तो जिथे वो आंसू पैंदा ना उस धरती ते फिर गुले गुलजार होता है, उत्थे महक खूबसूरत फुलों की उपज होती है जो तुहाडी जिंदगी दे विच एक रोशनी लैके एक खुशबू लैके आउंदी है, जो तुहाडे दिल में महक कर दिंदी है, जिथे सिर्फ एक गुरु की याद वसदी है और दूजा कोई नहीं है। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कितने देवी देवते कितने काल करा, कहते जे सब खेल गोविंद के, एक कोई परमात्मा तो करना ही है, पर इतने देवी देवते तुम मनोगे किस तरह, तो एक मनोगे दूजा नाराज होगा, दूजे मनोगे तीजा नाराज हो जाएगा। सतगुरु ने एक बड़ा सौखा तरीका दसिया इस जीव को, इन्होंने देवी देवतों का आशीर्वाद पाने वास्ते, इन्होंने गुरुओं पीरों का आशीर्वाद पाने वास्ते वो एको नाम की गल कर रहे। कितने देवी देवते कितने काल कराल, कहता जे सब खेल गोविंद के अंत ना आवे, कोई अंत नहीं आएगा, ना भूता चैनल का आएगा, ना काल कराला का आएगा, ना किसी होर वस्तां का आएगा। जिहदा नाम तुसीं लवोगे वो है दुनिया ते, जिस चीज़ का नाम तुसीं दुनिया ते लवोगे वो ना हैगा। अगर इन्होंने नामों के पिछे तुसीं अपना स्वासां वेस्ट करते रहे तो फिर किसी का कसूर कोई नहीं, वो तुहाडे अपने, तुहाडियां अपनियां चाहतां जिहड़ियां तुहानूं होना चाहता ने, तुसीं तो चाहतां खुशी वास्ते लेके नहीं, लेकिन वो दुख का कारण बन गई। वो क्यों बनिया? क्योंकि तुसीं एक नाम नाल जुड़े नहीं आ, एक नाम विच रहंदे, एक नाम नाल अपना रिश्ता नाता जोड़ के रखते, उत्थे दुख सुख भोगते कि परमात्मा जो मैं लेना तेरे दर तो लेना, मैनूं होर कितों नहीं चाहिए। जिन्होंने सतगुरु स्वामी ज्ञानगिर महाराज ने एक शब्द किया, बड़ा सुंदर शब्द है, मेरे सहबा प्यार में रंगी रखना, भावें धरती सुवा ते भावें मंजी रखना। बड़ा सोहना शब्द है। महाराज ने कहा है मैनू मेरी मंग जी है कोई भी होवे, मेरी होर कितों नहीं मंग पूरी होनी चाहिए। मैं अगर कितने चल भी जा भुल भुलेखे तो महाराज मेरी मंग पूरी ना करी, अगर पूरी करनी है तो मैनू अपने दर तो पूरी करनी। क्यों? क्योंकि जे मिलेगा जो कुछ भी तेरे दर तो मिलेगा, थोड़ा मिलेगा बहुता मिलेगा, पर मेरा ध्यान तेरे चरणों में रहेगा। अगर मैनू कितों होर मिल गई तो मेरा ध्यान तेरे चरणों चो हट जाएगा। अगर तेरे चरणों से मेरा ध्यान हट गया तो सिवाय दुखों के सिवा मुझे होर नहीं मिलेगा। गुरु की जुदाई जी होंगी है बड़ी माड़ी होंगी, बहुत माड़ी होंगी। दास ने एक शब्द लिखा सी, गुरु जी तेरिया जुदाइयां सानू जीन ना देंदियां ने, गुरु जी तेरिया जुदाइयां। ये दुनिया के पदार्थ मिल जाएंगे, लेकिन गुरु ने मुख मोड़ लिया तो उत्थे सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय साड़ी जिंदगी से रोन का स्वागत। इस करके प्यारे गुरमुख को आओ आज इस गल का फैसला करना कि महाराज ने क्या, कितने देवी देवते कितने काल कराल, ये सब खेल गोविंद के अंत न आवे कोई, कहे रविदास विचार के तू प्रभु मेरा तो सोए। ऐलू तू अपना ध्यान मार्ग दे चरणों में नाम दे विच रुचि हो, नाम को अगर ध्यान में रखेगी, नाम का तू रोज जाप करती रहेगी, नाम के जरिए तू संगतां की सेवा करती रहेगी, नाम के जरिए तू अपने गुरु नाल प्यार पा के रखेगी, तेरे तू कभी भी घाटे में नहीं आएगी। तेरा सफर जिहड़ा है, तेरा जो मकसद है वो तेरा गुरु महाराज जी पूरा करेंगे, बल्कि अंग संग होकर नाम करेंगे, नाल सहाई होकर करेंगे, जिससे तेन पता भी नहीं लगेगा कि कौन कर गया। एक प्यारे गुरमुखो, जे कितों सानू कितों मंग पूरी हो जाए ना तो फिर की होता है, असी यो गल कहते कि सानू इत्थों मिल रहा, गुरु का नाम निकल जाता पिछों। लेकिन महाराज कह जे सब खेल गोविंद के अंत ना आवे कोई, कहे रविदास विचार के तू प्रभु मेरे बस होए, तू अपना ध्यान सतगुरु के चरणों में टिका करके दस सिमरन विराज कर। अगर
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭੀਤਰ ਆ ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਭੀਤਰ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰੂਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਲ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। तो हनेरा करके मेरा जो रेस है वो ज़्यादा तेज चल रही है। ये हनेरा यार मैं जल्दी जल्दी पहुंचा, कोई कितने मैनू है होंदा डर होंदा, कोई मैनू फड़ना ले, कोई मैनू वैसे भी तुम देख लो हनेरे थोड़े कदम जल्दी जल्दी तुरनगे, तुसीं किते पहुंचना है, हनेरा है और तुसीं जल्दी पहुंचने की कोशिश करोगे तो तुसीं 2 घंटे पहुंचना तो 1.5 घंटे पहुंचोगे, क्योंकि तेज थोड़े तो डर है कि कोई मैंने पकड़ ना ले, कोई मैंने लुट ना ले, कोई मेरे को कोई चीज़ खो ना ले। तुम दवा दवा अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करोगे तो जे रोशनी होगी, लाइटां जगियां होंगियां, दुकानां खुलियां होंगियां, तो तुम आस्ता आस्ता चलोगे। ऐ कितना सोहना है, आ कितना सोहना, आ चीज़ बड़ी सोहनी लगी हुई है ना, वो थोड़े कदम आस्ता आस्ता देखते देखते जाएंगे, आस्ता आस्ता जाएंगे। जो हनेरा होएगा थोड़े कदम चलते। इस तरह के हुए ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਖੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਠ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਠ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਬਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਲੋੜੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦਿਲ ਰਾਖੇ ਸੰਤੋਖ, ਰਵਿਦਾਸ ਜਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਬਹਨ ਲਾਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
गुरु की बख्शिश ना लेता है, जो हमेशा सुखदायक होता है, आनंद भी होता है, सुकून भी होता है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते कि इस दुनिया के विच असीं सबर और संतोख में रहना है, और सबर संतोख विच आकर के दुख सुख को अपने सतगुर का भाना मान करके चलांगे तो फिर शायद किते साडे उपर सो की कृपा हो, साडे उपर शायद किते सो परमात्मा की कृपा हो जाए, और जो साडे संतां दा अंग संग है प्राप्त हो जाए, और साडे संत जन जो साडी व्यथा को समझते हैं, क्योंकि साडे जो शब्द की कमाई कराने याद रखते हैं तो साडे विचारां नूं बदलते हैं। जो साडे मन के विचार इस दुनिया में लगे हुए हैं वो अपने शब्दों के तीर के राही, शब्दों की चोटां के राही साडे मन में एक सेध दलते हैं कि मन तू किहड़े पासे लगा हुआ है, तेरा तो रास्ता इधर से तू इधर जा रहा है। बस जिसने इस रस्ते को पछाण लिया कि हाँ महसूस कर ले कि हाँ ठीक कह रहे, मेरा तो रास्ता ये है ही नहीं सी, मेरा तो रास्ता इधर सी, मैं तो मन की मत्ते चलता गया। आज मैंने रास्ता गुरु की मत्ते मिले, गुरु की मत्ते मिले रास्ता, और एक स्थिर केवल की केवल तैयारी करो को सबर और सिद्क के नाल होना है, जिसने अपने जिस तरह रूहां सेवा करती हैं, सेवा को अपना आधार मान लेंदियां ने, कोई राह बना लो तुसीं सतगुर के घर का सेवा करके, सतगुर के घर की संगत करके, सतगुर का नाम करके, सतगुर का सिमरन कोई तुम लैना अख्तियार कर लो, तो परमात्मा का जरूर पहुँचा देगा। एक बार एक बच्चा अपनी मां में आखने लगा, मां ये मां असीं जिस दुनिया में रह रहे हैं साडा राजा किहड़ा है, राजा साडा राजा किहड़ा है, मां मैं राजे को मिलना चाहता है, दुनिया राजे राजे दी गल्लां करदी, साडा राजा इधर है कि साडा राजा किहड़ा है। वो मां पुत नूं की राह दसदी राजे का, उन्हें कभी आप राजा ने देखा, लेकिन सवाल मां ने कहता, मां पुत्र ने कहता कि मां मैं राजा देखना है तो मैनूं राजा दस कित्थे रहिंदा है। वो कहते मैनूं की पता कित्थे रहिंदा, एवें गल्लां मारी जांदा, छड्ड एवें गल पर होगा गल नूं मां ने टरका दिता। क्यों टरकाया? क्योंकि खुद पता नहीं सी। प्यारे गुरमुखो, अज गुरमुख का होना जिहड़ा बहुत जरूरी है। आज तुहाडे घर बेटे ने बेटी ने जन्म लिया है, उसका गुरमुख होना बहुत जरूरी है। अगर गुरमुख होवोगे तो तुसीं कल अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब कुछ दे सकोगे। तुसीं गुरमुख बनोगे, तुसीं नाम की कमाई करोगे, तुसीं शब्द के नाल जुड़ोगे, तुसीं संगत नाल जुड़ोगे, संगत की सेवा करोगे, तुहाडे अवगुण गुणां विच तब्दील होणगे, तुहाडे विचार जिहड़े तब्दील होणगे, तुहाडे विचार जिहड़े परमात्मा की सोच नाल रखणगे कि परमात्मा मिलना है। जो तुहाडे ये विचार बनणगे तो तुहाडी आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है उन्हां दे विचारां विच भी प्यारे गुरमुखो चीज़ बदलेगी, बहुती नहीं तो थोड़ी बदलेगी। इस करके गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये जो देखने की लालसा जो बच्चे मन से उपजी है कि मैं अपने राजे के दर्शन करना चाहता, मैं देखना चाहता, मैं बोलना चाहता कि राजा राजा गल जरूर करते हैं भी राजा किसी ने देखा नहीं है, मैं देखना चाहता। अज ये मन से विचार लिया कि मां ने तो टाल दिता, लेकिन बच्चे ने अपने सोच में जरूर रखे कि मैं अपने उस राजे के दर्शन करना चाहना जिसकी प्रजा में असीं रहने हैं, जिसके राज में असीं रहने हैं, जिसकी आज्ञा में असीं रहने हैं। एक दिन उस पिंड में एक संत महात्मा आए। जो संत महात्मा देखे तो बच्चा दौड़ के उन्होंने को गया, उन्होंने उठाया, करो पानी लियाया, पानी पियाया ठंडा। तो एक ही है, ये सेवा है। जो किसी को कुछ असीं प्राप्त करते हैं तो असीं सेवा करते हैं, सेवा राही होता है, इतना नहीं होता। और सेवा सच्चे हिरदे नाल होंदी है, और गुरु महाराज जी हिरदे नाल सेवा पछाण देना, जो करता है सेवा पछाण देना भी कौन सच्चे हिरदे नाल करता है, कौन किसी वस्तु पीछे करता है, कौन किस चीज पीछे करता है। जो केवल परमात्मा पीछे, परमात्मा की चाहत विच, परमात्मा के दर्शनां दे विच मैं अपने मालिक को देखा, मैं अपने मालिक को जाना कि मेरा मालिक है कौन है। जो इस चाहत विच अपने वड्डिया वडेरिया की सेवा करता है, गुरुआं की सेवा करता है, पीरां की सेवा करता है, केवल परमात्मा को देखने वास्ते कि मेरा कौन है,
ये ਜਿਹੜੇ मेरे अपने बने हुए ने तो मैंने धोखा दे रहे ने, ये तो मेरे ठगियां कर रहे ने। मेरा कौन है? जो मेरा कौन है, दुनिया में मेरा कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरी रूह का परमात्मा कौन है? जो इस तरीके नाल ये सवाल करके संतान इस कुछ न कुछ जवाब मिल जाएगा। आज बच्चे ने वो सेवा कमाई, संतान पानी पियाया, ठंडा गर्मी का दिन से बड़ा अच्छा लगा, तो बैठ करके बच्चे नाल 2 मिनट गल्लां कीतियां। बच्चे ने वो गल दोहराई है जिहड़ी अपनी मां नूं दोहराई सी कि ऐ संत जी, ऐ गुरु जी, मैं अपना राजा देखना चाहना है, किरपा करके मैनू उहदा मार्गदर्श करो कि साडा परमात्मा है कि मेरा राजा कित्थे है। गल तो वो राजे की कर रहा है जो दुनिया का राजा है, जिसकी प्रजा में असी जिसके राज में असी रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठ उठ रहे हैं। संत ने सोचा कि ये बच्चा है, जिस तरह का सवाल है इन्हों उस तरह का जवाब देना है। ये राजे की गल कर रहा है, अपने देश की लोग के राजे की गल कर रहा, इन्हों देखने का चाह है कि मैं राजा देखना सही किस तरह का होता है, किस तरह उसकी पोशाक होती है, किस तरह का लिबास होता है, किस तरह उसकी चहल पहल होती है, ये मन च शौक है। अज प्यारे गुरमखो, अज संतां ने आख्या कि फलानी फलानी जगह राजे का महल बन रहा है, फलानी फलानी जगह राजे का महल बन रहा है भाई, उत्थे जा करके सेवा करो, उत्थे किते कोई तेनों दिहाड़ी ला ले, कोई तेथों काम लै ले, जे ला ले कोई तो फिर तू काम करी उत्थे। ते कदी कदी राजा अपने महल को देखने वास्ते आता भी कितना काम होया, काम कितने गलत नहीं होया, काम ठीक हो रहा, जिस तरह अं कितने दुकान का काम लाया हो, अं रोज तो नहीं जाते, तो कभी कभी जाते आप वो महल देखना था, मकान देखना। अज प्यारिओ ये गल सोच के संतां ने मत्था टेकिया, चंगा महाराज तुसीं मैनूं किरपा की, तुसीं मैनूं ठिकाना दस दिता है, तो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्र तुहाडा। अज मां तुसीं आया, हाँ अज मैं राजे नूं देखण चलिया आया, तो मैनूं पता नहीं कितना क टाइम लगना है, मैनूं महीना 2 महीने भी लग सकते हैं, तो मैं राजे दर्शन करके मुड़ना है, मैं मेरा बेगल ना करी, मैं राजे दर्शन करके मुड़ना है। मां ने भी सोचा भी जिस गल का जवाब मैं दे नहीं पाई, शायद इनको तो पता लग गया है, तो भाई जी ये तो चाहत है अपने राजे को जन्म, तो मैं कौन होगी ठाकर वाली, तो तू जा भाई देखिया जा करके, ये आज चला गया, हाँ तो पहुँच गया, अगे देखिया काम काज लगा हुआ है, मजदूर काम करने, उत्थे पूछा भी मैं भी सेवा करना चाहता है, मैंने भी दिहाड़ी ला लो इतने, मेरे भावे तुम दिओगा फिर मैं काम से ला लो। आज बच्चे की मंजूर होगी, आज बच्चा से काम, और काम इन्नी लगन कर लगा कि 2-2 बंदियां का काम कला करिए। अच्छा हम जो ठेकेदार होंदा है या कोई मिस्त्री होंदा, जो मजदूर को काम करते देखते हैं, सेवा करता देखता, लगन नाल देखता, तो प्यारे गुरमखो उहदे काम की घाट नहीं होती, जिहड़ा लगन नाल मेहनत नाल काम करता है उहदे काम की घाट नहीं होती। वो तो मिस्त्री जिहड़ा है ठेकेदार आप बाजा मारदा, फोन करता भी आ जाए, अज काम करते हैं हफ्ता 2 हफ्ते 15 दिन हो गए, ठेकेदार को क्या मैं अपना हिसाब कर ला, कहना हिसाब कर ला अपना, कहना जी कोई नहीं कर लाँगे हिसाब कर ला, ठेकेदार कहते चलो साढ़े को खिला वो कहते देख ला जी, मैंने कहते चलो मम्मी को देखा, उन्होंने 15 दिन फिर लगा, महीने बाद क्या बंदा खाँदा पींदा रोटी पानी खानी है जो तनख्वाह। ठेकेदार को गया कहता जी बच्चे अपना हिसाब कर ला, भी तेरा महीना हो गया अपना हिसाब कर ला, कहना हिसाब करना अं अपने घर का काम करन दे, अं तो अपने घर का काम करन दे, सानूं लोड़ ही कोई नहीं पैसे। ठेकेदार बड़ा हैरान होया इस गल भी, लोग तो तरले करते एडवांस दे दो, मैंने दिहाड़ी मेरी इन्नी दिहाड़ियाँ, अं तो उंगलों से कदे इन्नियां दिहाड़ियां हो गई भाई, इन्ने पैसे बन गए, हिसाब पहले लाना शुरू कर दिंदे। ये बच्चे को पता ही नहीं है भी महीना ला के पैसे नहीं मंगे ना, और भाई लला पैसा तो कोई खर्चा पानी करना जी, कहा खर्चा बस, कहना अपने घर का काम, अपने घर चाह लो चलेगा अपना समझ। अज गुरु घर की सेवा करनी है तो अपना समझ के, अपने गुरु का घर समझ के करनी है, ना कि तो मैंने फलानी चीज़ मिले, मैंने फलानी चीज़ मिले, इस गल की सेवा नहीं होती।
गुरु अपनी मर्जी का, राजा अपनी मर्जी का तुहानूं देंदे, तुहाडी वक्री गल है। लेकिन तुसीं अगर चाहत रखो कि मिले मिले, तुहाडी सेवा नहीं मिले, तुहाडे अंदर केवल सेवा 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 सेवा। अज 2 महीने हो गया बच्चे ने पैसा कोई लिया, अपना घर का काम सुन के कर रहा है, तो लंगर पानी चलता तो लंगर छक लेता है, अज अपना काम कर लेता है। अज 2-2.5 महीने बाद राजा अपने महलों में आया। जो महलों में आया उहदे लई तख्त बसाया गया, राजा तख्त ते आके बह गए। सारे जितने मजदूर सन सारे उन्होंने याद में उन्होंने सलूट उन्होंने सलाम करने वास्ते खलोगे नहीं। लेकिन वो बच्चा जो अपना काम करी जा रहा, उन्होंने पता राजा आया नहीं आया, वो अपने काम में लगन है। हर की लगन में मगन जो ताकि मन प्रकाश, वो लगन के नाम काम कर रहे हैं, उन्होंने पता राजा आया या नहीं आया। सारे उठ के सलाम करते रहे, अपनी जाइए सलाम करते रहते। तो हम राजा भी जो होंगे वो भी देखता भी किहड़ा मैनू आया, मेरे को किहड़ा नहीं आया। उन्होंने भी पता होंगे अपनी संगत का। गुरु महाराज जो भंडारा करते होंगे सन, जो बुलाड़ा था तो वापस आना या किसी भंडारे तो जाना, तो उन्होंने यह फर्ज बनता कि महाराज असीं चले हैं, महाराज जी को इजाजत लैके जाना कि महाराज जी असीं चले हैं। चलो की मतलब सी, गुरु की आगे ना आए सी, गुरु की आगे ना चले हैं। साढ़े अंदर बात रखवाला गुरु महाराज जी है। ये संगतां विच प्यार सम्मान से महाराज जी चले हैं, तो महाराज जी आज जाओ गुरु भला करे, तो जो बोला के प्रसाद खाते प्रसाद देगा भाई तब फिर रूह जी कहते महाराज जाके और परवाह नहीं कोई, आप बस मिले ना मिले, गड्डी मिले ना मिले, अं घर पहुंचना है और पहुंच गया। कई बार ऐसा हो जाए, लेकिन महाराज जी कोई ना कोई पता सी दूसरे आगे बचाया। कई तो बार बार निकल जाते हैं, नहीं कोई गल होती है महाराज साहब, एक प्यार होंदा, सम्मान होंदा है। गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा जो रखे। आज वो बच्चा जरा अपने काम में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। आज वो राजे की नजर गई है भी वो बच्चा सारे दे आके सलाम करके सारे आके मिल करके वो बच्चा जरा है वो मतलब कहता कि वो ना तो आया है, ना उसने कोई सलाम की, ना ही कोई पूछा है पुरस्कार में। लेकिन जो सेवा में लगे उन्होंने पता ही नहीं बेचारे मेरा महाराज आया नहीं आया। लेकिन उसने तो महाराज से पता ही, राजा ने क्या बुलाओ बच्चे ने की गल क्यों आया क्यों नहीं है। वो महाराज जी ठेकेदार बोले, वो कहना महाराज जी नहीं सको गाली भी आई चला, क्या बात है महाराज बात क्या होनी। ये अज 2-2.5 महीने हो गया लगे और काम इन्ना करता कोई साहब ने 2-2 बंदियां का कला कला काम करी जाता और कभी पैसा नहीं मंगे। मैं 2-3 बार देने की कोशिश की है, कहना घर का काम है, घर का काम है, की करना पैसे लैके। एक सेवा हो गई गुरु घर की गल कर रहा कि जो सेवा होती है सेवा निष्काम होती है, कोई लैन देन नहीं होता। और इस गल को आश्चर्य सुन के राजे ने बुलाया, को लाओ बुलाया ना भी कौन है, देखिए क्या है। अज कहना भी आप राजा ने बुला के राजा आए हुए थे, हाँ बुलाया गया। जो बुलाया गया तो राजा को बच्चा आया, जो आया तो हाथ जोड़ गए और जो मन की जो खुशी है, जो मन की एक चाहत सी दर्शना की वो पूरी हो गई। तो राजा ने सवाल पूछा, क्या ये बच्चा तू इन्ना चलो काम करते तू पैसे नहीं ले, तू अपनी मजदूरी ले? कहना महाराज मिल गई महाराज। कहते वो कहना 2-2.5 महीने है पैसा नहीं लिया, तू कहना मिल गई। हाँ महाराज जी मिल गई, थोड़े नाल दर्शन हो गए, थोड़े नाल गलबात हो गई तो मिल गई। यही मेरी चाहत सी, यही मेरी मुराद सी। राजे को इसकी गल बहुत अच्छी लगी, ये बंदा जो दर्शनों के लिए चाहत रखता है, मान से प्यार की। आज कहना जी राजा वापस जा लगा अपने तन से, कहना भी चल तू मेरे नाल जा करके अपने मंत्री मंडल में मंत्री बना दिता। जो मंत्री बना दिता, राजे का कोई बेटा नहीं सी, एक लड़की सी।
जो बेटा जवान है नौकरी करते मंत्री बन के काम करते करते काफ़ी काम अच्छे तरीके नाल कीता, चंगी सोच नाल कीता, मेहनत लगन नाल कीता। अज उसकी मेहनत लगन देख करके प्यारे गुरमखो अज राजे ने यह विश्वास दिला कि ये बच्चा अच्छा है, ये राज को पहचानेगा, जानेगा, ये मेरा अगे वंश चलाएगा, मेरा अगे राज लैके जाएगा, वध चक्के काम करेगा। अज अपनी धी का रिश्ता जोड़ा उस लड़के नाल करके उसको राजा बना दिता। ये की होया है प्यारे गुरमखो, बच्चे ने तो कुछ नहीं सी समझा कि मैं कुछ बनागा लावांगा या कुछ करांगा, लेकिन सिर्फ एक राजे की चाहत, एक दर्शन की चाहत अपने मन में रखी कि मैं अपना राजा देखना कौन है। इस चाहत नाल आज जो गरीब मां का बेटा बिल्कुल गरीब आज जो उस देश का राजा बन गया, जिस देश के राजे को केवल दर्शन करना चाहता है। तो एक ही है, ये है एक निष्काम सेवा का नतीजा। निष्काम सेवा के नाल अपने सतगुरु को याद करना, वो भजन बंदगी का जो हुक्म करना, हुक्म जोड़ा है कि भजन सिमरन करना, ये सतगुरु का हुक्म है, जिसने इस हुक्म को अपने जहन में रखिया, अपने दिल दिमाग में रखिया कि परमात्मा का हुक्म है कि भजन सिमरन करना है। और जिन्होंने इस हुक्म को बजाया है वो बल्कि अपने उस बेगमपुरा जो देश सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं उस देश के वो बशिंदे बन जाते हैं, वासी बन जाते हैं, जिथे वो अजर अमर हो जाते हैं। ये है इस मानव शरीर का दुनिया में आना और आ करके अपने उस लक्ष्य की पहचान करना, अपने टारगेट की पहचान करना कि मेरा मुख निशाना की है, जो उस निशाने से तुर पैंदियां ने और उन्होंने एक न एक दिन उन्होंने मंजिल जरिया मिल जाती है। ये सारी मंजिल कितों मिलनी है? हंग 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 सो पावे उसका बेड़ा पार। इस हंग दुनिया के रह करके अपने सो परमात्मा जो लै करके चल रहा है, उन्होंने एक दिन अपने अपने सो पति का, सो परमात्मा, सो पिता का मिल जाना। इस करके सतगुरु महाराज जी अगे से कहते हैं, संतां दी एक शेरनी लग अंदर दिल खाए, आंदी दा पता नहीं चलदा बिन देखे तुर जाए। संतां दी एक शेरनी लग अंदर दिल खाए, आंदी दा पता नहीं लगदा बिन देखे तुर जाए। संतां दी एक शेरनी बिन देखे अंदर लग जाए। चिंता एक चिंता है जो मनुख जो दुनिया में आकर के जिसमें इस गल की चिंता लग जाती है, चिंता दुख पैदा करती है और ये आंधी का पता नहीं लगता कदों आ वड़ती है। अजे हुणे बैठे होंगे हैं चंगे खुशे करने हासे कट्ठे करने हुए हैं, हुणे आके सुनिया दिंदा जो फलाना बंदा इस तरह होले चेता ओले कुछ ना कुछ। और प्यारे गुरमुखो ये चिंतावां इस माया की दुनिया में निकलदियां जो इन्होंने पिछे पैदा है, इन्हों की चाहत रखता है, इन्हों अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। कब्जे में आ भी जाएंगे लेकिन सुकून नहीं तुहानूं देंगे, आनंद तुहाडा खो लैणगे। इस करके महाराज जी कहते हैं जो संत समझाते हैं, शेरनी को कितना डर लगता है, शेर को कितना डर लगता है। शेर को भरोसा कर सकता है लेकिन अं माया का भरोसा करते हैं, पता नहीं कदों पाए ना दुख जो सुख जो दुख नहीं पता चलता। मान लो हमने साढ़े करोड़ रुपये लॉटरी निकली है, हम लॉटरी निकली दुनिया तो पता लगता ही है कि लॉटरी निकली है। कोई डाकू स्कीमा ला लगता है, कोई चोर ठग ला लगता है, ये अगो आए वो धोखे नाल किसी तरह के पैसे लुट लेंदा, वही जो सुख मिले ही वही दुख का कारण बन जाता है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहते संतां की गल पिछे जाना है, संतां की गल को समझना है
तो जो संत जो गल समझाते हैं कि नाम दी उस नाम के नाल जुड़ जाओ, उस नाम को समझ लवो, उस नाम की कमाई कर लो, तां जो तुहानूं कुल चिंता तो दूर कर दे। हाँ जी। कई बारी तो फन खिलाड़ी बिन देखे डराए, बिना वजूदों यैर इसदा रोम रोम चढ़ जाए। कई बारी तो फन खिलाड़ी बिन देखे डराए, बिना वजूदों यैर इसदा रोम रोम चढ़ जाए। ये की हानि प्यारी गुरमुखो, साडे मन का फुरना है। साडे मन का फुरना जो फन खिलारता है, जो अपने किसी के प्रति साड़ी गलत नजर आ गई, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ चीज़ चुकन का साढ़े अंदर फुरना आ गया, वो चीज़ा उत्थे ही है, फुरना पहला आ गया। वो फुरने ने फन खिलाना शुरू कर दिता, ये किते मेरे हथ आए, ये किते मैनूं मिल जाए। वजूद कोई नहीं है, फुरने का कोई वजूद नहीं है। पाल जिथे तो पाल चो कनेडा भी पहुंच जाता है, बाहर देशों पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी दूर पहुंच जाता है, बिना सभी को पहुंच जाता है। ये मन का फुरना है। और मन के फुरने में केवल तुहाडे सतगुर का प्यार है, नाम का जपन का तुहाडे अंदर चाह है, तो तुहाडा फुरना कभी गलत नहीं हो सकता। जे बिना वजूद तुहानूं दूर पहुंचा सकता है, तो जो नाम के जपन का फुरना साडे अंदर आएगा, इहो नाम तुहानूं सचमुच च लैके चलेगा। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। निशान किनारे बदलो, किनारे दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाए। इस सिर्फ फुरने की सोच को बदलना है। जब असीं किसी वाले बुरी नज़र करते हाँ, तो बुरी नज़र करने नाल प्यारे गुरमुख साडे अंदर जहर चढ़ना शुरू हो जाता है। साडा मन का फुरना जहर बनाना शुरू कर देता है, और ये जहर प्यारे गुरमुख जिन्हां दे अंदर होंदा है, वो कोई चंगा काम थोड़ा करना आंदा है, वो अंदर खलारा फन खिलारदा है, पूरे ये सोचा पैदा करता है। इसे करके संतों ने एक शब्द में आख्या सी कि मन लोचे बुराइयां गुरु शब्द दिया मन बोली। महाराज ने एक सवाल किया कि सत्संगी ने कि महाराज ये जो काम क्रोध सब ठगता है, राखो चित संभाल, सत परमात्मा विधिया सभी करे पाल। कितने प्रभु के भगत पे कितने होए उदार, कितने पंडित जोशी पीता करीब चार। ये सवाल किया महाराज साढ़े अंदर जो विकारां दी अग्गां जिहड़ियां फुरने बन के आउंदियां ने, अगर असीं इन्हां तों बचना चाहते हैं तो कितना बचांगे असीं? तो संत गुरु रविदास महाराज ने कहा कि मन लोचे बुराइयां गुरु शब्द दिया मन हो गया। कि इंसान अगर तेरे मन में कोई बुराई आ गई है, किसी के प्रति कोई बुराई ने जन्म ले लिया है, जो किसी वाल देख के बुराई बढ़ती जाती है, तो एक काम करी, अगर इस बुराई तो बचना चाहना है, इस फुरने दी अग तो बचना चाहना है,